Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with set number 2 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set is an arrangement based set which I've taken from previous year's MCAT, and the set says a football academy is organizing a grand team photograph before the start of a tournament. 12 football players are to be seated on a chair number 1 to 16 arranged in a straight line. The players are Aaron, Blake, Carter, Dylan, Ethan, Felix, Gavin, Henry, Isaac, Jason, Kevin, Liam. The player belong to three training groups, five defenders, three midfielders, four forwards. Only one player can occupy a chair. The coach wants all players belonging to the same group to sit together such that there is no empty chair within the same group and there is at least one empty chair between two different groups. However, no more than two consecutive chairs may remain empty. The following additional facts are known. Aaron and Blake must sit on consecutive chair with Blake immediately to the right of Aaron. Okay. Isaac and Jason must sit on consecutive chairs and both must occupy chair number higher than that by both must occupy chair number higher than those occupied by Aaron and Blake. Dylan, Ethan and Felix are forwards and must sit consecutively in the order D, E, F after all defenders and midfielders have been seated. Kevin must sit on the chair number 16. Liam and Jason belong to the same playing group, while Henry belong to the different group. Carter is a midfielder and also Carter is a midfielder and must sit on a chair immediately preceded by two empty chairs. Liam must sit on a chair immediately preceded by exactly one empty chair. Questions एक बार पढ़ लेता हूँ. Question number 1 कह रहा है how many different ways can the player be seated on the chair? Question number 2 कह रहा है which of the following player is a not a defender? Question number 3 कह रहा है which of the following can represent a chair number remain empty in a possible arrangement? Question number 4 कह रहा है which of the following statement is necessarily true? एक लीनियर अरेंजमेंट का सेट जिसमें कि अपने को 16 चेयर्स के बारे में बता दिया और उन 16 चेयर्स पे हमें 12 लोगों को एलोकेट करना है और वो 12 लोग कौन है? ये लोग ए से लेके एल तक के लोग. ठीक है. अब इनको भी फर्दर सेग्रीगेट करा गया. ये जो ए से लेके एल तक के लोग हैं इनको 3 अलग-अलग ग्रुप में बना दिया गया जिसमें से डिफेंडर है 5, मिडिल फील्डर्स हैं 3 और फॉरवर्ड खेलने वाले हैं 4, यानी कि टोटल 12 लोग अपने को बता दिए गए. कह रहा है कि ओनली वन प्लेयर कैन ऑक्यूपाई अ चेयर. एक चेयर पे बैठने वाला एक ही बंदा है. द कोच वांट्स ऑल प्लेयर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप टू सिट टुगेदर. कोच का ये मानना है कि जो 5 लोग एक साथ है वो एक साथ बैठे हों या 3 जो है वो एक साथ बैठे हो, 4 एक साथ बैठे हो. सच दैट देयर इज नो एम्प्टी चेयर विद इन द सेम ग्रुप. कोई भी चेयर उनके आपस में खाली ना हो. ठीक, मतलब 5 है जो 1 से लेके 5 तक एक साथ बैठे हैं, वहीं 1 से लेके 3 तक कुछ ऐसा. ऑल्सो देयर इज एटलीस्ट वन एम्प्टी चेयर बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप. अच्छा, 2 डिफरेंट ग्रुप के बीच में कम से कम एक का गैप, एक चेयर का गैप होना चाहिए एटलीस्ट. तो मतलब ऐसा हो सकता है कि 5 ऐसा या 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है. टोटल 12 चेयर है ना, तो ये एक बन सकता है या 4 लोग 2 गैप 5 ऐसा या 1 गैप 5 1 गैप 4 2 गैप 3, कुछ भी ऐसा बन सकता है. तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे बन सकते हैं. ठीक है. However, no more than 2 consecutive chair may be empty. Also, ज्यादा से ज्यादा 2 चेयर है जो एम्प्टी रखी जा सकती है. देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 ही चेयर दिख रही, 2 दिख रही, बिकॉज 12 लोग तो यही थे, तो ज्यादा से ज्यादा 4 ही सीटें जो मैं खाली रख सकता था ना. तो यहाँ पे देखो 1 फिर 2 फिर 3 या 4, क्योंकि 16 का कॉम्बिनेशन भी बनाना है अपने को. ठीक. अब है क्या, इस पॉइंट के बाद तुम्हें ना तुम्हारे दिमाग के अंदर वो विजुअलाइज होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए कि 16 चेयर्स है उसमें से कुछ ऐसा चला. तो उसके लिए कब कर पाओगे? जब यू हैव अ टेबल. तो मैंने क्या करा, एक टेबल बना दिया जिसमें कि 16 लोग हैं. अब मेरे को पता है इसमें से शायद 1-2 खाली फिर आ जाए, फिर खाली, फिर ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक. लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 जो बोला गया, उससे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या निकाल सकते हैं. ए एंड बी मस्ट सिट ऑन अ कंसेक्यूटिव सिट विद बी इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए. ठीक है. ए के राइट साइड में बी को बैठा होना चाहिए और दोनों को एक साथ होना चाहिए. ठीक. तो मतलब ए और बी किसी एक ग्रुप के होंगे जिसमें से ए के राइट साइड में बी बैठा हुआ है. बी इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए. तो ऐसा हो सकता है ए बी ए बी ए बी ए बी, कुछ ऐसा हो सकता है. ठीक. आइजैक एंड जैसन मस्ट सिट ऑन कंसेक्यूटिव चेयर्स. ठीक है. आई और जे को भी साथ में बैठना चाहिए. एंड बोथ मस्ट ऑक्यूपाई चेयर नंबर हायर देन दोज ऑक्यूपाइड बाय ए एंड बी. अच्छा, दोनों की जो चेयर नंबर है वो हायर होना चाहिए ए और बी से. तो मतलब आई और जे हो सकता था या जे और आई हो सकता था. एक साथ तो कुछ भी हो सकता है ना.
और इनकी चेयर नंबर इनसे ज्यादा है, मतलब ये अगर 1-2 पे बैठे हैं तो ये 3-4 पे बैठे होंगे, कुछ ऐसा। ठीक है। डी ई एफ आर फॉरवर्ड्स, चलो ये एक मिल गया। फॉरवर्ड वालों में अपने को पता है कि डी ई और एफ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं था, डी एफ यहाँ आना था ना, इसको क्लियर रख देता हूँ। डी ई एफ फॉरवर्ड है, तो मतलब डी ई और एफ, ये 3 कैरेक्टर के बारे में पता चल गया, ये लोग फॉरवर्ड खेल रहे हैं। ठीक। अच्छा, 4 में से 3 मिल चुके हैं। आफ्टर ऑल डिफेंडर्स एंड मिडल फील्डर्स हैव बीन सीटेड, डी ई एफ आर फॉरवर्ड एंड मस्ट सिट कंसेक्यूटिवली इन द ऑर्डर, सेम ऑर्डर भी बता दिया है। आफ्टर ऑल डिफेंडर्स एंड मिडल फील्डर्स हैव बीन सीटेड। अच्छा, ये कहाँ बैठे होंगे? जहां पे ये दोनों बैठ चुके हैं, तो मतलब ऐसा होगा ये जो आखिरी के 4 आएंगे, ठीक है, ये जो 4 हैं ये आखिरी में आएंगे। ये इस पॉइंट से मेरे को समझ आ गया। उसमें भी ये डी ई एफ है, ये एक साथ बैठे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि पहला 5 और फिर 3 फिर 4, या 3, 5 और 4। अब इनके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन आ सकता है कि मतलब 1 वैकेंट यहाँ पे, 2 वैकेंट यहाँ पे, 1 वैकेंट यहाँ पे, या 1 वैकेंट यहाँ, 1 वैकेंट यहाँ, 1 वैकेंट यहाँ, 1 यहाँ पे वैकेंट, कुछ ऐसा आ सकता है। ठीक। पॉइंट नंबर 3 से इतनी क्लैरिटी आ गई कि ये जो 4 लोग हैं, तुम्हारे ये वाले, कौन सा कैरेक्टर हो गया? मिडल फील्डर्स वाले। ठीक है, मिडल फील्डर्स वाले नहीं, फॉरवर्ड्स वाले, ये एक साथ बैठे होंगे और आखिरी में बैठे होंगे। ठीक है, डी ई एफ आर फॉरवर्ड्स और ये लोग आखिरी में बैठे हैं। केविन मस्ट सिट ऑन चेयर नंबर 16। अच्छा, केविन को 16 नंबर चेयर पे देना। ओके, अब ये आखिरी में, तो यानी कि ये जो 4 है ये 4 ही होना चाहिए। तो यहां से एक चीज तो मिल गया कि ये 4 तुम्हारे कौन है? फॉरवर्ड वाले। ठीक, उसमें से भी पता है कि डी एफ को देना था, तो यहाँ पे डी ई और एफ आना चाहिए था। तो यानी कि ये 4 तो अपने को बड़े इजीली से मिल गए। ठीक, आई होप ये पॉइंट समझ आएगा ना। के आखिरी में आया, तो मतलब आखिरी में यहाँ पे कोई तो होना चाहिए था, क्योंकि के जिस ग्रुप का होगा वो लोग साथ में यहाँ बैठे होंगे। और वो ग्रुप कौन सा हो सकता था? ये 4 वाला ही हो सकता था, और उसमें भी पता था कि डी ई एफ को उसी ऑर्डर में बैठना है, तो बाय दैट लॉजिक ये निकाल दिया। ऑल्सो 12 पे कोई नहीं बैठेगा, बिकॉज हर 2 ग्रुप के बीच में कम से कम 1 का गैप तो होना चाहिए था। तो कम से कम 1 का मतलब ज्यादा भी हो सकता है। तो या तो 1 का गैप होगा या 2 का गैप होगा। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 ने और पॉइंट नंबर 4 ने काफी क्लैरिटी दे दी। एल एंड जे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ठीक है, एल और जे एक ही ग्रुप के हैं, तो आई भी उसी ग्रुप का होगा, बिकॉज आई और जे एक ही ग्रुप के थे। ठीक है, एल एंड जे बिलोंग टू द सेम ग्रुप वाइल एच बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप, और एच जो है अलग ग्रुप का है। ठीक, पॉइंट समझ आया? एल और जे एक ही ग्रुप के हैं, तो आई भी उसी ग्रुप का होगा, बिकॉज आई और जे एक ही ग्रुप के हैं, वो यहाँ पे हमने देख रखा था। और एच अलग ग्रुप का है, तो मतलब एल जे आई कौन है? वो शायद हो सकते हैं मिडिल फील्डर्स, और बाकी 5 बंदे डिफेंडर्स मिल जाएंगे, या एल जे आई डिफेंडर हो सकते हैं और बाकी ये लोग मिडिल फील्डर्स हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, कार्टर इज अ मिडिल फील्डर एंड मस्ट सिट ऑन अ चेयर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 2 एम्प्टी चेयर। अच्छा, एक ही मिला। कार्टर जो है मिडिल फील्डर है, और वो कहाँ बैठा होगा? 2 प्रीसीडेड बाय 2 एम्प्टी चेयर्स। ठीक है, 2 एम्प्टी चेयर्स मतलब वो किसी 2 चेयर के बाद आ रहा है। ठीक है, वो या तो इस जगह पे आया होगा, अगर 3 शुरुआत में आया तो मतलब 2 ऐसी खाली मिली होंगी, या वो ऐसा होना चाहिए था, अगर यहाँ पे देख पाओ तो। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर वो यहाँ पे बैठा होगा, बिकॉज वो अब मिडिल फील्डर वाले ग्रुप में सबसे पहले बैठा होगा, और वो जहाँ पे बैठ रहा है उसके पहले 2 खाली थी। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला अगर बनता है, ठीक है, 3-5-4 वाला, तो ऐसा होना चाहिए कि 3 के पहले 2 खाली है, फिर 1 खाली है, फिर ऐसा खाली है। या 5-3-4 वाला बनता है, तो 5 के बाद 2 खाली है, 3 के बाद 1 खाली है, और यहाँ पे 1 खाली है। ठीक, दोनों ही केस में क्या चीज समझ आ रहा है? यहाँ पे 12 ही खाली होगा, 11th पे अपने को कोई ना कोई बंदे को बैठाना जरूरी है। ठीक, थोड़ा और पढ़ते हैं। कार्टर इज अ मिडिल फील्डर एंड मस्ट सिट ऑन इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ 2 एम्प्टी चेयर्स। इसके ना 2 केस बना लेते हैं, 2 केस बना लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा अपने को। एक केस हो सकता है कि भाई यहाँ पे आ गया और कार्टर को यहाँ दे दूं, तो 1 2 3, ठीक है, फिर एक ब्लॉक यहाँ देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक, तो यानी कि पॉइंट समझ आया? ये 2 खाली, 1 2 3, ये 3 लोग यहाँ सेट हो गए, 1 यहाँ खाली, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ गए, फिर एक ब्लॉक, फिर 4 आ गए। या ऐसा हो सकता था कि
यही चीज को मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ इस चीज में, मतलब इसी को फिट इन कर रहा हूँ ना। एक हो सकता था कि भाई एक खाली, 1 2 3 4 5, फिर 2 खाली और सी आ जाए, और यहाँ पे ये आ जाए। ठीक, देखो अब यहाँ पे 1 2 3 आ गया, 2 खाली, 1 2 3 4 5 आ गया और 1 खाली। तो मेरे को एक पॉइंट समझ आ गया कि यार जो वैकेंट है वो 1 2 6 12 या 1 7 8 12, यानी कि 1 और 12 का होना कंपलसरी है। ऑप्शन भी देखो ना तो 1 और 12 हर जगह पे दिखते हुए तुम्हें दिख रहे होंगे। ठीक है? अच्छा, थोड़ा और पढ़ते तो और अपने को क्लियर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 के बाद, लियाम मस्ट सिट ऑन अ चेयर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एग्जैक्टली 1, प्रीसीडेड बाय 1 यानी कि यहाँ पे लियाम को यहीं पे आना चाहिए। ठीक है? यानी कि लियाम को यहाँ आना चाहिए। लियाम मतलब यहाँ पे आएगा, यानी कि ये 5 वाला ग्रुप है। 5 वाला ग्रुप का मतलब ये कौन है? ये पाँचों वो वाला ग्रुप है जहाँ पे ये लोग आ गए होंगे। तो यानी कि यहाँ पे कौन आना चाहिए था? एल, जे, आई। आया समझ? फिर से देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई कर रखा था ना कि एल, जे, आई पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, और क्योंकि एल मेरे को 5 वाला मिल गया है, बाय दैट लॉजिक मैंने कंक्लूड कर दिया कि जे और आई भी 5 वाले होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है? अच्छा, मेरे को ये पता है कि जहाँ पे एल होगा उसके अलग वाले ग्रुप में एच को होना चाहिए था, यानी कि एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अपने को ये भी पता है कि ए और बी को एक साथ देना था। ए और बी यहाँ नहीं दे सकता ना, यहाँ पे दूँगा तो 4 लोग हो जाएँगे, तो मतलब ए और बी को इस वाले ग्रुप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन बच गया अपने पास? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी बच गया। यानी कि यहाँ पे किसको आना चाहिए था? जी को आना चाहिए था। ठीक? यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक? अब अपने को ये पता है कि ए और बी को एक साथ रखना है। ए और बी को एक साथ रखने का मतलब ऐसा रखना है कि वो अ, ए और बी को अपने को एक साथ रखना था, और क्या बोला था? आई और जे से पहले आएँगे ना। आई एंड जी मस्ट सिट आल्सो सिट consecutive chairs and both must occupy chair number higher than those of A and B। तो मतलब ए और बी को यहाँ रखना पड़ेगा, आई और जे को यहाँ रखना पड़ेगा। उसमें भी मेरे को पता है कि ए और बी को ऐसे रखना पड़ेगा बिकॉज़ ऑर्डर डिफाइंड था। आई और जे के बारे में नहीं पता, वो ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है बिकॉज़ इनके बारे में पता था कि ये consecutive बैठते हैं। ये नहीं पता कि कैसे बैठते हैं। सिमिलरली ये यहाँ पे आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, और आई और जे यहाँ आ जाएगा, जे और आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? आई एम लेफ्ट विथ दिस गाय एच और जी। एच और जी के बारे में अपने को कुछ भी नहीं दिया गया, तो एच और जी कैसा आ जाएँगे? यहाँ पे आ जाएँगे और यहाँ पे आ जाएँगे, और यहाँ पे भी आ जाएँगे एच और जी, जी और एच। बस इतना सा अपने को करना था। चलें क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में से शायद क्लैरिटी मिल जाए अपने को। पूरा तो नहीं बनेगा, ये तो साफ-साफ दिख रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज़ कैन द प्लेयर बी सीटेड अमंग द चेयर? तो एक एच वाला केस विथ आई और जी 2, एक जी वाला केस विथ आई और जी, यानी कि 4 केस यहाँ से बन सकते हैं। एक एच वाला जी यहाँ पे विथ आई और जे, एक यहाँ पे 4, यानी कि टोटल अपने पास 8 केसेस बन सकते हैं। ठीक है? आई होप ये समझ आ रहा होगा ना? एच अगर यहाँ पे रखूँगा तो आई और जे का 2 केस, एच अगर यहाँ पे रखूँगा तो आई और जे का 2 केस। सिमिलरली एच यहाँ रखूँगा तो आई और जे का 2 केस, और जे और आई का 2 केस, ऐसा जी एच यहाँ रखूँगा तो ये 2 केस, तो टोटल 4 केस होने चाहिए था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज़ नॉट अ डिफेंडर? कौन सा प्लेयर डिफेंडर नहीं है? डिफेंडर एल, जे, आई, ए, बी हैं। बी है, ए है, एल है, तो आंसर क्या होना चाहिए? जी। जी देखो यहाँ पे दिख रहा है, वो कौन है? मिडिल फील्डर है। ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चेयर दैट रिमेन एम्प्टी इन अ पॉसिबल अरेंजमेंट? 1 और 12 को तो होना चाहिए था। 7 है, 11, 11 देखो एम्प्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। 1 5 6, 5 एम्प्टी नहीं है, इनकरेक्ट। 1 2 6 12, 1 2 6 एंड 12, परफेक्ट। ये देखो ये मिल गया, क्योंकि क्या बोला था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट, मस्ट तो बोला नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। चेक कर लेता हूँ, 1 2 8 12, 1 2 8 देखो यहाँ पे है, 12 नहीं है। ठीक है? अब देखो इस वाले केस में ना यहाँ ध्यान देना जरा, देखो मैंने 8 और 12 है, 8 और 12 यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे 12 2 नहीं है, तो ये चीज को ध्यान देना। 1 2 6 12 में देखो 1 2 6 और 12, तो ये कॉम्बिनेशन इस वाले केस में दिख रहा है कि ये ट्रू है, वेयर एज ये वाला यहाँ पे दिख रहा है कि फॉल्स है। ठीक? आई होप ये समझ आएगा क्यों हमने सी मार्क कर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is necessarily true? There are two empty chairs between the defenders and the middle fielders. डिफेंडर्स और मिडिल फील्डर के बीच में कम से कम नहीं,
देयर आर 2 एम्प्टी चेयर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे ना एक ही चेयर दिख रही है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। एक ऑल डिफेंडर्स आर सीटेड बिफोर मिडल फील्डर्स, ऐसा भी नहीं है। ऑल मिडल फील्डर्स आर सीटेड बिफोर डिफेंडर, नहीं ये भी नहीं है। ये तो दिख रहा है ना कि हमने दोनों केसेस बना रखे हैं ना, दिख रहा है यहाँ पे। यही आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। देयर आर एट लीस्ट 4 चेयर बिटवीन ब्लेक एंड कार्टर। बी और सी के बीच में 4 चेयर हैं, 1 2 3 4 हैं। बी और सी के बीच में 4 चेयर हैं, 1 2 3 4 हाँ है। एटलीस्ट वर्ड किया है, तो यहाँ पे ये आंसर सही है। ठीक है। ओवरऑल मॉडरेट सेट, इजी से मॉडरेट, लीनियर अरेंजमेंट का बढ़िया सेट, ये कैट का इंस्पायर्ड सेट है, वहां से उठाया हुआ। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।